Dear students, in this video lecture I am going to discuss effect of wind and ice loading on calculation of sag and tension of overhead transmission lines. In this video lecture I will also discuss some numerical questions on calculation of sag and tension in overhead transmission lines. So let's start with the effect of wind and ice loading. So let us see what is wind and ice loading. We have a running transmission line. Suppose this is the overhead transmission line. Now we have calculated the sag and tension in the normal condition. Now if there is the condition of snowfall, so because of snowfall what will happen? There will be the coating of ice on the transmission line conductors. So on the transmission line conductors there will be coating of ice. So ice will form a layer. So because of the coating of ice, the weight of conductor per unit length will be increased. So of course when weight is increasing, so what will happen? The value of sag, that means this height will be increasing because now the conductor will be loaded like this one. So this is the effect of ice. Next, the effect of wind. If wind is blowing, so what will happen? Because of wind, the wind will create a pressure on the conductor. So now because of the pressure, again the weight per unit length of the conductor will be changed. But yes, we'll have to think that when there is ice loading, so because of ice loading, this will be the direction of weight of the conductor, that means the weight of ice. Now when air is blowing, so because of air it will be blowing like this one. So that means if the weight of ice is vertical, so weight of air will be acting in the horizontal direction. So we have to see how these two are affecting. So let us see. Let us consider a conductor having radius r. A conductor having radius r. Now if there is the coating of ice, अगर आइस का कोटिंग इस कंडक्टर पर होगा तो इस आइस के कारण क्या होगा? ये चारों तरफ यहां पर आइस जमा हो गया. मान लेते हैं इस आइस का थिकनेस t है. सपोज द थिकनेस ऑफ आइस इज t. t इज द थिकनेस ऑफ आइस. तो अब ओवरऑल रेडियस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा? r प्लस t हो जाएगा. क्लियर? तो हम लोग यहां पर देखते हैं रेडियस ऑफ द कंडक्टर इनिशियली हमारा r है और जो w है स्मॉल w, ये है वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ये हमारा वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर. क्लियर? अब इस कंडक्टर में आइस जमा हो गया है. आइस जमा होने के कारण इसका थिकनेस इंक्रीज कर गया. तो हम लोग यहां पर सबसे पहले चेक करेंगे, जो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वो एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे फॉर वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर. वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर चेक करते हैं क्या होगा. इट विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पर अगर वॉल्यूम की बात करें पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ये होगा हमारा पाई इंटू ये हमारा टोटल रेडियस हो जाएगा r प्लस टी होल स्क्वायर माइनस ये रेडियस हो जाएगा r स्क्वायर. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इसलिए मैं यहां पर L से मल्टीप्लाई नहीं किया हूं क्योंकि वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ हमें कैलकुलेट करना है. अब अगर हमें आइस का डेंसिटी मालूम है, आइस डेंसिटी मान लेते हैं, आइस डेंसिटी हमें दिया हुआ है रो एंड रो इज इक्वल टू 910. तो यहां पर देखिए आइस डेंसिटी हमें दिया गया है, आइस डेंसिटी रो दिया गया है. जब हमें आइस डेंसिटी रो दिया गया है, अब हम लोग यहां से कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ आइस पर यूनिट कंडक्टर लेंथ. वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ. तो ये वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये सिंपली क्या होगा? रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो पाई इंटू r प्लस टी होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. अब नाउ द यूनिट विल बिकम
kg per meter square. Now the weight of ice will become Wi, it will be pi rho into r plus t whole square minus r square kg per meter square. So this is the effect of ice. अब हम लोग इफेक्ट ऑफ विंड चेक करते हैं. इफेक्ट ऑफ विंड ऑन वेट. तो इफेक्ट ऑफ विंड अगर हम चेक करें तो विंड क्या करेगा, विंड का अपना एक प्रेशर होगा, वो प्रेशर मान लेते हैं, सपोज प्रेशर ऑफ विंड इज P. प्रेशर ऑफ विंड इज P. तो जब विंड का प्रेशर P होगा हम लोगों को चेक करना पड़ेगा वेट ऑफ विंड. तो वेट ऑफ विंड अगर देखें तो ये हमें यहां से मिलेगा P इंटू 2 इंटू R प्लस T. दिस विल बी द वेट ऑफ विंड. P इंटू 2 इंटू R प्लस T. यहां पर 2 इंटू R प्लस T कहां से आ रहा है, देखिए यहां पर जो ये है R और प्लस T, ओवरऑल हमें अब टोटल जो रेडियस मिला है, ये रेडियस हमें मिला है R प्लस T हो चुका है, क्योंकि जो विंड का इफेक्ट आ रहा है उस आइस के इफेक्ट के साथ साथ आ रहा है, यानी आइस की कोटिंग हो चुकी है, अब इस पर विंड फ्लो कर रहा है. तो टोटल जो डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा रेडियस, दैट विल बिकम R प्लस T. तो इसका जो डायमीटर होगा दैट डायमीटर विल बिकम 2 इंटू R प्लस T. इसलिए यहां पर लिखा गया है 2 इंटू R प्लस T इंटू प्रेशर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी द वेट ऑफ विंड पर यूनिट लेंथ. तो जब हमें वेट ऑफ विंड पता चल चुका है, वेट ऑफ आइस पता चल चुका है, एंड वी ऑलरेडी नो द वेट W, दैट मींस वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो अब हम लोग यहां से नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्टिव वेट. फ्रॉम हियर वी राइट इफेक्टिव वेट. सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव वेट? So effective weight will be represented by W. So let us see W will be equal to, अब देखिए यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में दो वेट लग रहा है, एक W जो वेट ऑफ कंडक्टर है और दूसरा वेट ऑफ आइस लग रहा है, यानी WI. So W plus WI is acting in vertical direction while the weight of air is acting in horizontal direction WA. तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे और उसका अंडर रूट होगा. सो हियर इट विल बी W प्लस WI होल स्क्वायर प्लस WA स्क्वायर. दैट मींस द वेट ऑफ एयर, दैट मींस वेट ऑफ विंड पर यूनिट लेंथ. तो ये रहा हमारा इफेक्टिव वेट. अब हम लोगों को जब इफेक्टिव वेट मिल चुका है तो यहां से एक फैक्टर आ रहा है लोड फैक्टर. Now load factor Q is defined as capital W divided by small w. This is the load factor. यानी कि इसी फैक्टर से हमारा लोड क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है. पहले W था, अब कैपिटल W हो गया. सो दिस इज द लोड फैक्टर. तो अब हम लोगों को लोड फैक्टर जब मालूम हो चुका है, अब हम लोगों का आगे टारगेट है कि हम लोग स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्रेस में किस तरह से चेंज आ रहा है. तो स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास दो कंडीशन हो रहे हैं. पहला कंडीशन जो हमारे पास है, द फर्स्ट कंडीशन इज सीवियर आइस एंड विंड. पहला कंडीशन है सीवियर आइस एंड विंड. तो जब सीवियर आइस एंड विंड कंडीशन है तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा कंडक्टर का लेंथ होगा, यानी कि कंडक्टर का लेंथ, मैं स्पेन लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल जो कंडक्टर का लेंथ होगा, ये कंडक्टर का लेंथ को हम लोग L1 मान लेते हैं. द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L1. इसके बाद हम लोग स्ट्रेस को F1 मान लेते हैं. नेक्स्ट हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि लोड फैक्टर हमारा Q1 हो जाएगा. लोड फैक्टर विल बी Q1. हम लोग Q1 लोड फैक्टर को मान लेते हैं. अब हमारा दूसरा रहेगा, यहां पर देखिए सेकेंड कंडीशन है कंडीशन 2. तो कंडीशन 2 क्या होगा, कंडीशन 2 मैं ले रहा हूं स्टिल एयर यानी यहां पर फ्लो नहीं कर रहा है, एंड स्टिल एयर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन ले रहा हूं, यानी यहां पर टेम्परेचर भी नॉर्मल है, यानी आइस लोडिंग नहीं है. तो यहां पर देखिए फर्स्ट केस में टेम्परेचर का भी हमें लेना पड़ेगा T1. तो सेकंड केस में लेंथ क्या होगा, चेंज होगा. ये हमारा चेंज होगा स्ट्रेस, ये हमारा चेंज होगा Q2.
दिस विल बी T2। ये रहा हमारा कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। इसके अलावा हम लोग मान लेते हैं, इसके अलावा देखिए कुछ फैक्टर्स को मैं मान रहा हूं। ये देखिए अल्फा। सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और दूसरा हम लोग मान रहे हैं E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, is the modulus of elasticity of the material. This is E is the modulus of elasticity of the material. तो अब देखिए यहां पर कि जो हमारा कंडीशन 1 था और कंडीशन 2 था, तो कंडीशन 1 और कंडीशन पहले हम मान लेते हैं कि हमारा कंडक्टर ऑपरेट कर रहा था कंडीशन 1 में, यानी आवर कंडक्टर वाज ऑपरेटिंग इन सीवियर आइस एंड विंड कंडीशन। तो उस केस में लेंथ L1 था। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कंडक्टर जो ऑपरेट कर रहा है, ये ऑपरेट कर रहा है स्टिल एयर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन में, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है और यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है एयर भी यहाँ पर स्थिर हो गया है। तो यहाँ पर लेंथ L2 है। तो अब देखिए यहाँ पर L2 और L1 के लेंथ में क्या डिफरेंस आएगा, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेरिवेशन को। Here you will see L2 will be equal to L1 plus L into alpha into T1 minus T2, L into alpha into T2 minus, here it will be T2 minus T1, T2 minus T1 plus, यहां देखिए अब ये टर्म आएगा हमारा माइनस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय E, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय E इंटू L। इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब है कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो ऑफ कोर्स जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारा कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर का लेंथ एक्सपेंड करेगा। तो कंडक्टर का लेंथ यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही क्या हो रहा है कि हमारा टेंशन कम हो जा रहा है। कंडक्टर का स्ट्रेस है, कंडक्टर का स्ट्रेस कम हो जा रहा है, और जब कंडक्टर का स्ट्रेस कम होगा तो कंडक्टर क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब कंडक्टर ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा इसका मतलब कंडक्टर का जो ओवरऑल लेंथ होगा वो ओवरऑल लेंथ कम होगा। इसलिए हमारा ये टर्म माइनस में लिया हूं और ये टर्म प्लस में लिया हूं। दिस इज द L2 इक्वल टू L1 प्लस L इंटू अल्फा इंटू T2 माइनस T1 माइनस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय E इंटू L। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर अब हम लोगों को L2 और L1 का एक्सप्रेशन लिखना है। I have to write the expression for L2 and L1। हम लोग देखते हैं L2 और L1 का एक्सप्रेशन क्या है। तो अगर हम L2 का एक्सप्रेशन देखें, अगर हम L का एक्सप्रेशन देखें, तो L का एक्सप्रेशन होता है L इक्वल टू स्मॉल l प्लस L क्यू डिवाइडेड बाय 24 C स्क्वायर। L इज small l plus LQ divided by 24 C square. This is the formula of L, that means the length of conductor. तो अब हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, C का टर्म अगर हम देखें तो C देखिए क्या होता है, T क्या होता है, T इज इक्वल टू ओमेगा इंटू W इंटू C। सो W इंटू C इज इक्वल टू T। तो हम लोग यहां से C को लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर C कैन बी रिटन एज T बाय W। तो जब C को हम लोग T बाय W लिख चुके हैं, तो अब देखिए यहां पर जो T है, ये T क्या है, T इज नथिंग बट F इंटू A डिवाइडेड बाय W। T इज नथिंग बट F इंटू A डिवाइडेड बाय W, दैट मीन्स द वेट ऑफ कंडक्टर। तो अब हम लोग देखिए यहां पर जो नेक्स्ट टर्म मैं लिखूंगा यहां पर, ये देखिए जब हमें एरिया मिल चुका है और ये हमें W मिल चुका है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाय W को हम लोग W डिवाइडेड बाय A जो अगर हम लिखें वेट पर यूनिट एरिया, सो ये क्या बतलाएगा, ये हमें डेंसिटी बतलाएगा, क्योंकि वेट पर यूनिट लेंथ है इनटू एरिया है। तो यहां से हमें ये क्या बतलाएगा, F डिवाइडेड बाय डेल्टा। यहां से हमें बतलाया जाएगा F डिवाइडेड बाय डेल्टा। क्लियर? तो जब हम लोग यहां पर इस फॉर्मूला में लिखेंगे तो यहां पर देखिए कौन कौन सा टर्म आएगा।
यहां पर इस फॉर्मूला में देखिए हमारे पास f का टर्म आएगा, हमारे पास डेल्टा का टर्म आएगा c के जगह। क्लियर? तो यहां पर देखिए और इसके साथ साथ एक q का टर्म आएगा। q का टर्म क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहां पर जब हम लोग L2 या L1 लिख रहे हैं, सपोज वी आर राइटिंग L1, तो L1 के केस में क्या होगा? L1 विल बी इक्वल टू L प्लस LQ डिवाइडेड बाय 24C स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा? जो C होगा, ये C होगा देखिए L1 के केस में, यहां पर L1 में यानी हम लोग जो वेट आ रहा है ये कैपिटल W वेट आ रहा है। तो जब कैपिटल W वेट आएगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? C इक्वल टू T डिवाइडेड बाय कैपिटल W। C इक्वल टू T डिवाइडेड बाय कैपिटल W। तो यहां पर हम लोग इसे लिखेंगे F इंटू A डिवाइडेड बाय कैपिटल W। इसको हम लोग स्मॉल w से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब हम लोग स्मॉल w से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस टर्म को ध्यान से, कैपिटल W डिवाइडेड बाय W, इसे क्या लिखेंगे? Q। और यहां पर देखिए इस टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? W बाय A, यानी इस टर्म को लिखा जाएगा हमारा डेल्टा, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? F डिवाइडेड बाय Q into delta. We can write C as F divided by Q into delta. We can write C as F divided by Q into delta. तो जब हम लोग यहां से C का एक्सप्रेशन समझ चुके हैं, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? L प्लस LQ इंटू Q इंटू डेल्टा ऊपर चला जाएगा, इंटू यहां पर हम लोग L1 के लिए लिख रहे हैं तो Q1 स्क्वायर डेल्टा 1 स्क्वायर divided by F1 square. So this is the expression for L1. This will be the expression for L1. तो जब हम लोग यहाँ पर L1 का एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गया है, similarly we will write for L2. L2 will also be equal to L plus LQ divided by LQ into Q2 square delta 2 square divided by, ये हमारा 24 था तो यहां भी होगा प्लस 24 F2 स्क्वायर। दिस विल बी द L2। लेकिन यहां पर देखिए डेल्टा अगर हम Q को कैलकुलेट करें तो यहां पर Q2 क्या होगा? Q2 विल बी इक्वल टू 1, बट स्टिल आई एम राइटिंग Q2 बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम Q1, बिकॉज इन द सेकेंड केस देयर इज नो आइस, देयर इज नो एयर, सो वेट विल रिमेन बी small w only, so that's why Q2 will become, load factor will be equal to 1. So now we'll put the values of L1 and L2 in this equation. तो जब हम लोग यहां से वैल्यू पुट करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? L2 को पहले लिखिए, L2 L प्लस LQ Q2 स्क्वायर डेल्टा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 F2 स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू L प्लस LQ Q1 स्क्वायर डेल्टा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 F1 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म L अल्फा इंटू T2 minus T1, and third term is minus F1 minus F2 divided by E into L. F1 minus F2 divided by E into L. तो हम लोग क्या करेंगे? ये L कैंसिल हो गया और L, इन सारे टर्म से L को आप कॉमन ले लीजिए, L और सारे टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारा बचेगा L स्क्वायर Q2 स्क्वायर डेल्टा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 F2 square 24 F2 square will be equal to L square Q1 square delta 1 square divided by 24 F1 square plus alpha into T2 minus T1 minus F1 minus F2 divided by E, ये टर्म हमारा आएगा। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर जो F1 का टर्म है हम लोग क्या कर रहे हैं? इस E से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब मैं E से मल्टीप्लाई करूंगा ये टर्म हो जाएगा E इंटू E, यहां पर भी ये टर्म में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन के साथ T1 इंटू E हो जाएगा, और यहां से ये E क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। ये E हटेगा तो यहां पर क्या होगा? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये होगा E माइनस F1 प्लस F2। अब हम लोग क्या करते हैं कि F1 हमें पता है पहले से, हमें रिलेशन यहां से F2 के लिए फाइंड करना है।
हम लोग F1 वाले टर्म को एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए ये है F1 का टर्म और दूसरा ये है F1 का टर्म, तो ये जब LHS में आ जाएगा ये क्या बचेगा F1 माइनस इस टर्म को यहां पर लाइए L स्क्वायर Q1 स्क्वायर डेल्टा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 F1 स्क्वायर इनटू E एंड इट विल बी इक्वल टू जो सेकेंड टर्म इधर से आ रहा ये टर्म क्या होगा, दिस टर्म विल बी इक्वल टू, यहां पर देखिए ये रहा हमारा F2 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 इंटू E और ये टर्म इधर आएगा तो माइनस L स्क्वायर Q2 स्क्वायर डेल्टा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 F2 स्क्वायर इंटू E। तो यहां पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म हमें पहले से पता है, तो ये टर्म जब हमें पता होगा तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, इसे हम लोग k मान लेंगे। नाउ k विल बी इक्वल टू F2 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इंटू E माइनस L स्क्वायर Q2 स्क्वायर डेल्टा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 F2 स्क्वायर इंटू E। तो अब हमें k पता चल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये टर्म हमें देखिए यहां पर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है, एम्बिएंट टेम्परेचर इन द कंडीशन ऑफ आइस लोडिंग इज नोन टू यू एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इन द केस ऑफ स्टिल एयर कंडीशन इज नोन टू यू, अल्फा एंड ई आर नोन टू यू, सो दिस टर्म इज आल्सो नोन टू यू। तो जब ये टर्म भी आपको पता है, हम क्या करेंगे इस टर्म को भी लेफ्ट में लाइए, T2 माइनस T1 इंटू E विल बी इक्वल टू F2 माइनस L स्क्वायर Q2 स्क्वायर डेल्टा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 F2 स्क्वायर इंटू E होगा। सो दिस इज द, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा टर्म जो हमारा k माइनस अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इंटू E है, ये सेकेंड टर्म भी हमारा क्या है, अब ये टर्म भी हमें पता है, तो ये टर्म को भी हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सपोज दिस टर्म इज इक्वल टू n, सो लेट अस सपोज LHS इज इक्वल टू नाउ n, तो हम लोग इसे लिखेंगे फ्रॉम हियर वी राइट n will be equal to F2 minus L square Q2 square delta 2 square divided by 24 F2 square into E। अब हम लोग क्या करेंगे, F2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस F2 स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा F2 स्क्वायर इंटू F2 माइनस n, इस n को RHS में लाते हैं और इस पूरे टर्म को LHS में लाते हैं, दिस इज इन LHS, दिस विल बी इन RHS। तो RHS में जो टर्म रहेगा, ये टर्म क्या होगा हमारा, ये टर्म हमारा होगा इस साइड आएगा, तो ये होगा L स्क्वायर Q2 स्क्वायर डेल्टा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू E, L स्क्वायर Q2 स्क्वायर डेल्टा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू E। अब देखिए यहां पर Q2 भी हम पता कर लेंगे, डेल्टा 2 भी पता कर लेंगे, E की वैल्यू हमें पता है। सो लेट अस सी दिस टर्म इज इक्वल टू m, लेट अस सी दिस टर्म इज इक्वल टू m। तो अब हम लोगों को m के फॉर्म में अगर इक्वेशन मिल गया है, तो फाइनली वी राइट द इक्वेशन F2 स्क्वायर इंटू F2 माइनस n इज इक्वल टू m, F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 माइनस n इंटू इक्वल टू m। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। यहां से हम लोग ये क्यूबिक इक्वेशन आ चुका है, सो बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ F2। हमें n पता है, m पता है और k पता है, ये तीनों चीज हमें पता है। तो अब हम लोग जब हमें F2 पता चल जाएगा, तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास टर्म आता है, ये टर्म है sec d का, तो sec d को हम लोग क्या लिखेंगे, sec d इज रिटन एज W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू टी, तो टी के जगह हम क्या लिखेंगे, W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू F2 इंटू A। So here it can be written as W L square divided by 8 into F2 into A. So this will be the expression for sag D. So this is all about the effect of wind and ice loading, यानी विंड और आइस लोडिंग के कारण हमने देखा वेट चेंज हो रहा है, और उसके बाद जब फेयर वेदर कंडीशन में आते हैं, तो फेयर वेदर कंडीशन में
उसका स्ट्रेस चेंज हो जाता है, उसी स्ट्रेस को हमें कैलकुलेट करना रहता है, दैट इज F2। तो ये हमारा विंड एंड आइस लोडिंग का एक्सप्रेशन हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिटन हियर। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द फेमस बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, दैट इज द बुक ऑफ मिस्टर CL वाधवा। तो ये शॉर्ट एग्जांपल है मिस्टर CL वाधवा का। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन, लेट अस कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो यहां पर देखिए हमें क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन। लेट अस कम टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दिया गया है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैज स्पैन लेंथ 160 मीटर, यानी जो टोटल स्पैन दिया गया है L is given as 160 meter. Next, it is given that conductor diameter is equal to 0.95 centimeter. So conductor diameter दिया गया है 0.95 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर ये कंडक्टर डायमीटर है जो कि D दिया गया है। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 0.65 kg per meter. So weight per unit length of conductor, that means a small w is given and it is equal to 0.65 kilogram per meter. Next, it is written that ultimate stress is 4250 kg per centimeter square. Ultimate stress is equal to 4250 kg per centimeter square. Wind pressure P is given 40 kg per meter square of projected area, and it is given factor of safety is equal to 5. Factor of safety is equal to 5. तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया हमें, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सैग करेंगे तो उसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करेंगे। उसकी वैल्यूज इट लाइज बिटवीन 2 to जनरली 2 to 5। तो यानी कि अगर हमारा सैग बिना फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किए हुए अगर हमारा सैग 3 मीटर का सैग आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कारण देखेंगे सैग का वैल्यू और बढ़ जाएगा और इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग जो कंसीडर करते हैं, हम लोग जो डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस करते हैं वो हमारा क्या रहता है, बेस्ड ऑन वर्स्ट प्रोबेबल लोड। तो वर्स्ट प्रोबेबल लोड के लिए इन सारे चीजों को साथ साथ सेफ्टी फैक्टर को कंसीडर करना रहता है। तो सेफ्टी फैक्टर को कंसीडर करने का मतलब है जो वर्किंग स्ट्रेस होगा, ये वर्किंग स्ट्रेस को क्या मान लेंगे और कम मान लेंगे, इन्हें 5 से डिवाइड कर लेंगे। इसलिए हम लोग लिख रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 4250 डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस 850 kg per centimeter square. Working stress is equal to, this is the value of F, 4250 divided by 5। यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि डिवाइड वर्किंग स्ट्रेस को 5 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि वर्किंग स्ट्रेस हमारा रिड्यूस हो गया। तो जब हमारा वर्किंग स्ट्रेस रिड्यूस होगा यानी उसका टेंशन रिड्यूस होगा, यानी उस कंडक्टर का तनाव रिड्यूस हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो कंडक्टर क्या होगा और डाउन आएगा और लोअर होगा, इसलिए उसका सैग बढ़ेगा। दैट्स व्हाई द वर्किंग स्ट्रेस इज गिवन एज 4250 डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस 850 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट पर यूनिट लेंथ हमें दिया गया है 0.65 kg पर मीटर। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर देखिए, यहां पर आइस का कंडीशन नहीं है, लेकिन यहां पर दिया गया है विंड का कंडीशन है। तो विंड का जब कंडीशन दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि विंड का कंडीशन दिया जाने का मतलब हम लोग यहां पर जो विंड का वेट होगा, विंड के वेट पर यूनिट लेंथ हम लोग विंड का कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए विंड पर यूनिट लेंथ क्या होगा, हम लोग WP अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या होता है, ये होता है 2 into R plus T into P। तो यहां पर T क्या है, T is equal to 0 because thickness of ice is 0, there is no ice coating। तो हम लोग सिंपली यहां पर क्या लिखेंगे 2R into P
P, तो 2r की वैल्यू दी गई है 0.95 सेंटीमीटर। तो 0.95 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, -2 × 40 kg पर मीटर स्क्वायर। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम हियर इट विल बी 0.38 kg पर मीटर। फ्रॉम हियर WP विल बी इक्वल टू 0.38 kg पर मीटर। तो अब हम लोग अगर इफेक्टिव वेट कैलकुलेट करें W, सो इफेक्टिव वेट क्या होगा, स्मॉल w स्क्वायर प्लस WP स्क्वायर, क्योंकि WI तो ऑलरेडी हमारा 0 है, तो स्मॉल w की वैल्यू दी गई है 0.65 स्क्वायर प्लस WP इज इक्वल टू 0.38 स्क्वायर। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ कैपिटल W इज कमिंग 0.7529, दिस विल बी इन kg पर मीटर, दिस विल बी इन kg पर मीटर। तो जब हमें कैपिटल W पता चल चुका है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेंशन T। अब हम लोगों को टेंशन T लिखना पड़ेगा। तो जब हम टेंशन T लिखेंगे तो टेंशन T क्या होगा, टेंशन T देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू F इंटू A। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हाट विल हैपन, डायमीटर इज गिवन, so area of cross section will be pi/4 into d square, so pi/4 into 0.95 स्क्वायर। और यहां पर देखिए जो एरिया हम लोग लेंगे, इस एरिया को यहां पर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लेंगे, इस एरिया को यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए वर्किंग स्ट्रेस भी आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। वर्किंग स्ट्रेस इज आल्सो गिवन टू यू इन 850 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से ही एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा है, यहां पर जो हमें एरिया मिल रहा, दिस एरिया इज इक्वल टू 0.7088 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इफ एरिया इज नोन टू यू देन वी कैन राइट T इज इक्वल टू F इंटू A, सो इट इज इक्वल टू 850 इंटू एरिया इज 0.7088, the area is 0.7088। तो यहां से जो टेंशन का वैल्यू आ रहा है 602.48 kg। फ्रॉम हियर टेंशन इज इक्वल टू 602.48 kg। So again we have to find the sag D. Finally let us come to the formula, final formula, that is W L square divided by 8 into T. So W, the value of capital W is 0.7529 into the length is equal to 160 meter, so it will be in meter, 160 square divided by 8 into 602.48 kg. So from here it will be equal to, sag D will be equal to 4 meter. Your answer will be sag D equal to 4 meter. So this is the solution of first question. So now let us come to second question. हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें इफेक्ट ऑफ विंड और आइस दोनों को कंसीडर किया गया है। द इफेक्ट ऑफ विंड एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ आइस हैज बीन कंसीडर्ड इन द क्वेश्चन। तो हमारा टारगेट क्या होगा, फिर से सैग कैलकुलेट करना होगा। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है वहां पर हम लोग पहले वेट ऑफ आइस निकालेंगे पर यूनिट लेंथ, और देन विल फाइंड द वेट ऑफ विंड पर यूनिट लेंथ। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इन द सेकंड क्वेश्चन अगेन इट इज गिवन दैट ए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर हैविंग ए डायमीटर ऑफ 19.5 मिलीमीटर। यहां पर पहले देखिए डायमीटर दिया गया है इक्वल टू 19.5 मिलीमीटर। हम लोग इसे सेंटीमीटर में लाएंगे, 1.95 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट दिया गया है वेट पर यूनिट लेंथ दिया गया है W इज 0.85 kg पर मीटर। वेट पर यूनिट लेंथ इज गिवन टू यू। द स्पेन इज 275 मीटर, दैट मींस L इज गिवन एज 275 मीटर। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट विंड प्रेशर इज 39 kg पर मीटर स्क्वायर। विंड प्रेशर P इज गिवन एज 39 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया। नेक्स्ट विथ आइस कोटिंग ऑफ 13 मिलीमीटर, यहां पर दिया गया है आइस कोटिंग। तो आइस कोटिंग का मतलब क्या है, T, स्मॉल t, इट इज इक्वल टू
13 millimeter, that means we can say 1.3 centimeter is the ice coating. ice coating के बाद आगे दिया गया है the ultimate strength of the conductor is 8000 kg, दिया गया है ultimate strength is given as 8000 kilogram. So when ultimate strength is given to you 8000 kilogram and it is given that factor of safety 2, factor of safety is given to you, it is equal to 2, and one more thing is given, ice weight is 910 kg per meter square. Ice weight is 910 kg per meter square. तो हमें यहाँ पर आइस वेट दिया गया है, यानी डेंसिटी ऑफ आइस दिया गया है 910 kg पर मीटर क्यूब. तो अब हमें यहाँ से फाइंड करना है फिर से सैग डी. वी हैव टू फाइंड सैग डी. तो यहाँ पर देखिए पहला टर्म जो डायमीटर दिया गया था, तो यहां से हम डायमीटर से रेडियस लिख सकते थे. रेडियस विल बी डायमीटर बाय 2, सो इट विल बी इक्वल टू 0.975 सेंटीमीटर. तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? When we'll come to the solution, our first target should be what? Our first target should be, we'll have to calculate the weight of ice and weight of air per unit length. तो वेट ऑफ आइस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं. एक आर दिया गया है हमें यहाँ पर, और दूसरा आइस कोटिंग की गई है, ये टी दिया गया है. तो हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखेंगे ये होगा पहले वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ. तो इट विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे और ये सारा वैल्यूज हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहां से अगर हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू 13.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. 13.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो यहां से वेट ऑफ आइस अगर हम कैलकुलेट करें WI, सो इट विल बी इक्वल टू रो इंटू 13.27 रो इंटू 13.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 kg पर मीटर हो जाएगा. तो यहां से अगर हम WI को लिखें, so from here WI will be equal to 1.208 kg पर मीटर. WI is equal to 1.208 kg पर मीटर. तो जब हमें WI मिल चुका है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है WA. तो WA क्या होता है? विंड प्रेशर P इंटू 2 इंटू R प्लस T. तो यहां पर देखिए विंड प्रेशर हमें दिया गया है, विंड प्रेशर इज गिवन एज 39 kg पर मीटर स्क्वायर. तो 39 दे दिए इंटू 2 इंटू R की वैल्यू है 0.975 सेंटीमीटर प्लस T की वैल्यू दी गई है 1.3 सेंटीमीटर. तो 1.3 सेंटीमीटर कर दिए इंटू यहां पर देखिए जो विंड प्रेशर दिया गया था ये हमें दिया गया था केजी पर मीटर स्क्वायर में. तो इस सेंटीमीटर को भी हम लोग क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. फ्रॉम हियर विल राइट WI विल बी इक्वल टू 1.77 kg पर मीटर. WA will be equal to 1.77 kg per meter. So now we'll write W. We'll write finally capital W. So it will be equal to W plus under root W plus WI square plus WA square. तो W plus WI अगर हम लिखें तो small w is given at 0.85 plus WI is 1.208 plus 1.208 होल स्क्वायर प्लस WA स्क्वायर. तो WA स्क्वायर होगा 1.77 स्क्वायर. तो फ्रॉम हियर विल राइट कैपिटल W विल बी इक्वल टू, कैपिटल W इज इक्वल टू 2.714 kg पर मीटर. तो W हमें मिल चुका है, L हमें पता है, और टेंशन T अगर हम देखें तो टेंशन T क्या है?
टेंशन टी देखिए यहां पर दिया गया है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया गया 8000 kg, kg is the unit of tension, factor of safety is 2, that means the tension will be, working tension will be 8000 divided by 2, that means 4000 kg. This is the working tension. So from here we write the sag D. So sag D will be equal to W, capital W, L square divided by 8 into T. So when you put all these values, W will be 2.714, L is 275 meter square, meter divided by 8 into T. From here it is coming 6.41 meter. This is the answer. This is the answer of this question. तो आज हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सैग टेम्पलेट्स देखेंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पहले आइस के वेट को कंसिडर नहीं किया गया था, दूसरे में आइस लोडिंग को भी कंसिडर किया गया। सो द न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू फाइंड द weight of the ice, weight of the air, and from there you can easily solve the numerical questions.